recording starts. Okay. Now children, in today's session, we will be continuing with the chapter from tasting to digesting. This is part 7 of the chapter. And I want you all to come to page number 28. There's we will give a reading to the paragraph that is given, and then we shall be discussing the question that follows it. So please come to page number 28, children. Are you all on page number 28? If yes, please give me a thumbs up. Okay, very good, children. Now we are doing the topic. Neetu was given a glucose drip. We shall be discussing the case of Neetu. She's facing some health problem. She's not well. We will try to know what is the story, what is the problem with what health issue is she facing, and what remedies were done with her. What did doctor advise her? What did the doctor do when she was taken to the hospital? Okay, this will come to know when we read the paragraph. So please children, on page number 28, I shall read the paragraph and then ask you some questions in between so for the better understanding of it. Ready? Ready? Okay. Neetu was given a glucose drip. Neetu was very sick. Why was she sick? All day she was vomiting and she also had loose motions. So, what were the symptoms that were observed with her? What was the problem with her? She was vomiting. And she was also facing the problem of loose motions. Vomiting मतलब बच्चे, she was puking. जब हम sometimes it happens तो बच्चे हम कुछ खराब खाना खा लेते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, we vomit because we are not able to keep that food inside our body, inside our stomach. And what do you understand by loose motions? When you pass watery stool, in that situation is called loose motions. Whenever she ate, she vomited. So she was trying to take the food inside, okay? But the food should remain in your body. For you to get energy, children, the food should at least remain in your body for 2 hours. Within 2 hours, the food gets digested. But before the food could be digested, her stomach was so upset that she was vomiting. Whenever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. Now, what did her father do? That means what remedy? What home remedy? What remedy by Neetu's father? Sugar and salt solution. मैम बहुत क्लियर नहीं दिख रहा। Sugar plus मैम बहुत क्लियर नहीं दिख रहा। मैम साइड में दिखाई दे रहा। मैम बहुत क्लियर नहीं दिख रहा। Is everyone बच्चे, क्या सारे बच्चों को बोर्ड क्लियर नहीं है? क्या सारे? यस मैम बोर्ड इज क्लियर। मैम बोर्ड इज क्लियर। If you are facing this problem, बोर्ड क्लियर नहीं है, प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो, दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है बच्चे? Now when she came
Now, मैम बोर्ड इज क्लियर। मैम बोर्ड ही नहीं दिख रहा। now ये तो था मॉर्निंग का केस बच्चे, ये तो था मॉर्निंग का केस। What happened in the मैम evening? साइड का कुछ दिख नहीं रहा। What happened in the evening? ओके ठीक है बच्चे, मैं उसको रब कर दूंगी, कितनी सब मैम टाइम। लिखना है। एक मिनट, शुगर प्लस, इसमें कुछ नहीं है बच्चे, शुगर प्लस सॉल्ट सोल्यूशन लिखा है मैंने वहां पे। मैम ये लिखना है क्या? नहीं बच्चे, आई एम डिस्कसिंग द केस स्टडी विद यू, आई एम डिस्कसिंग द केस स्टडी विद यू व्हिच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का काम हमेशा टेक्स्ट बुक में ही होना चाहिए, और टेक्स्ट बुक का काम हमेशा टेक्स्ट बुक में करो। इफ देयर इज समथिंग टू बी गिवन इन योर रिटन इन योर क्लास नोटबुक, इसको कौन करना है? हाँ बच्चे, इसको बुक में करना है? नहीं बच्चे, मैं आपके साथ में सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, मैं इसे पॉइंट लिखना नहीं है कॉपी में भी? पूरी जो केस स्टडी है उसे भूल ना जाओ, कोई पॉइंट आपका छूट ना जाए। By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. What was her case? She was also with now because she was vomiting. She had loose motions all day. What happened to her? She felt what? She felt weak. Sorry, weak plus dizzy. What do you understand by dizzy, children? What do you understand by dizzy? What do you understand by weak and dizzy, children? बच्चे, weak or she was feeling weak. That means she had lower energy levels, and she was also dizzy. That means that sometimes you feel no, you're not able to see whatever is going around very clearly. मैम साइड का नहीं दिख You रहा। you are hearing. You cannot hear the sounds properly. That means you are losing your consciousness. ठीक है बच्चे? साइड का नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। Now can you see? When she got up to go to the doctor, she fainted. What do you understand by she fainted? That she lost her consciousness. चक्कर, yes, अर्शिका, you're right. डिजी होने का मतलब होता है, फेंट होने का मतलब होता है चक्कर आ जाना। डिजी होने का मतलब होता है बच्चे कि आपके जो आसपास की आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है वो कम होता जा रहा है, आपको आवाज जो है धीरे सुन रही है, यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली, जैसे हम बोलते हैं ना आंखों के सामने अंधेरा धीरे धीरे छा रहा है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ फीलिंग डिजी। Neetu should be admitted. The doctor said that Neetu. Now, when she went to the doctor, what did the doctor say? He said that Neetu needs to be admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip. She needs to be given a glucose drip. So now, children, I have discussed the case with you. Now. Okay, ठीक है, notes हम बाद में लिखेंगे. Let us complete this case study. She needs to be given glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was glucose drip? Dr. Auntie explained, your stomach is upset. Your body is not keeping any food and water and has become very weak. So what was the problem with her, bache? Her stomach was very upset. It was not keeping, as I told you, in order to get energy, the food needs to be digested. Now, it will take some time for the food to be digested, but before the food could be digested in the stomach, she was vomiting. She was vomiting, and whatever water she was drinking, it was being removed out of her body because she was passing a watery stool. Right? Am I clear to you? उसकी बॉडी में ना खाना रह पा रहा था ना पानी रह पा रहा था, इसलिए उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो गई थी। उसकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेटेड हो गई थी। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दीस टू थिंग्स? ये दोनों चीजें होने का रिजल्ट क्या हुआ बच्चे? इसका रिजल्ट ये रहा बच्चे, लोअर एनर्जी लेवल, लोअर energy lower energy levels and dehydration.
The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. This is a very important line, children. You should keep in mind. अभी जो patients ऐसे होते हैं who have lost a lot of energy, they are not able to eat and they are dehydrated. तो एनर्जी लेवल्स क्या होंगे बच्चे, एकदम से ड्रॉप हो जाएंगे. तो ग्लूकोज ड्रिप क्या करती है, हमारी बॉडी के जो एनर्जी लेवल्स है उसको सडनली इंक्रीज कर देती है. नाउ टेल मी वन थिंग चिल्ड्रन कि if you're not feeling well, if you're feeling tired in your PT period, does your PT teacher ask you to take Glucon-D? क्या कभी किसी बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है, या फिर you've seen your friends taking Glucon-D once they have felt dizzy or fainted in the school? Have you ever? Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. Answer in the comment section. Do not make a noise in the class, children. Okay. Many of you have seen the case. Now, children, पता है हमारे स्कूल में थी. Listen to me very carefully. जब मैं स्कूल में थी ना, और हमारे पीटी टीचर ये बोलते थे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप डिजी फील कर रहे हो, अगर आप डिजी फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है फेंट हो जाओगे, तो आप क्या करो, आपके जो फीट के फिंगर्स होते हैं ना, ओके, उनको आप धीरे धीरे इस तरह से अप एंड डाउन करो, तो क्या होगा, you will somehow not faint. बट जो ग्लूकॉन-डी की जब बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना बच्चे, तो उस टाइम पे आपको ग्लूकॉन-डी की जरूरत होती है. आप कितना भी कुछ भी कर लो, ठीक है, you will not be able to stand in the assembly, you will not be able to concentrate on the activities which are going in the assembly. ठीक है बच्चे. Now it happened when I was on an internship. ठीक है, इससे पहले I had been working with a company में internship पे थी. तो क्या हुआ ना बच्चे कि उसी टाइम पे रेनी सीजन शुरू हो गया. तो हम ऐसा था कि घर पे मैं अकेले रहती थी, तो बाहर से खाना खा लेती थी. तो इट हैपन कि समहाउ मेरा जो स्टमक है वो काफी अपसेट हो गया था, एंड आई हैड फीवर आल्सो. So I just wanted my internship to get somehow over. I did not wanted to take a holiday in between. So what happened? My health deteriorated. मतलब काफी टाइम तक मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट होती रही. और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो इट हैपेंड. हॉस्पिटल में जब आप जाते हो बच्चे, तो आप हमेशा अपना नंबर लगाते हो, टोकन नंबर लेते हो, राइट? Does it happen in the hospital? आप जब हॉस्पिटल जाते हो तो ये होता है, आप टोकन नंबर लेते हो, राइट? हाँ, तो यहाँ पे मैं जब जाती हूँ तो ज्यादा पेशेंट्स होते नहीं है, पर वहाँ पे जब हम नेवी नगर के हॉस्पिटल में जाते थे बच्चे, वहाँ पे भी क्या है कि जिस तरह से यहाँ पे डिस्पेंसरी है, वहाँ पे भी छोटा हॉस्पिटल है विद इन द एरिया. तो वहाँ पे क्या लाइन लगती है. तो अब क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत खराब थी, फीवर भी था और रेगुलरली खाना भी नहीं खाया था, तो इसीलिए क्या हुआ, बॉडी के एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गए. जब मैं लाइन में खड़ी थी तो आई कुड से मतलब आई वाज नॉट एबल टू हियर प्रॉपर्ली व्हाट पीपल वर सेइंग. एंड वहाँ पे क्या था, थोड़ा वैसे तो रेनी सीजन था तो फिर थोड़ा अंधेरा तो रहता ही है, सनशाइन काफी कम रहती है, बट आई कुड सी लाइक देयर वाज मैंने जब इस तरह से लेफ्ट साइड में देखा तो कॉरिडोर था, उसमें ऊपर ना लाइट्स लगी हुई थी, ट्यूब लाइट्स लगी हुई थी, और धीरे धीरे व्हेन आई वाज अबाउट टू फेंट ना, धीरे धीरे वो लाइट्स जो है वो मुझे कम नजर होती हुई दिखाई कि हाँ पहले 10 थी, फिर 9 हुई, फिर 8 हुई, फिर 7 हुई. तो इस तरह से धीरे धीरे जो मतलब जब एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे सब कुछ दिखाई देना ही बंद हो जाता है. तो ऐसा होता है. तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. एंड मैं अपने सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि 7:45 की मॉर्निंग में क्लास होती है, तो प्लीज नाश्ता करके बैठें, क्योंकि आपको रेगुलरली क्लास के लिए बैठना होता है. तो इट शुड नॉट हैपन दैट बीच में आप ब्रेकफास्ट के लिए उठ के जा रहे हैं तो आप एक क्लास में दूसरी क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं. ठीक है. A lot of discussion on eating food properly.
Now let us come back to the chapter that we were on. Now we need to understand this, children. Yes, the case study is over. The case study is over. Let us discuss the questions. Yes. बच्चे, on page number 28 there is a subtopic talk and discuss. There is a subtopic talk and discuss. I would like to discuss these questions with you. इससे रिलेटेड नोट्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है बच्चे? मैम आप करा रहे हो? एक मिनट बच्चे, एक मिनट। टॉक एंड डिस्कस। बच्चे डिस्कस खिलाने में मैंने आपके साथ में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन शेयर किए हैं, तो आंसर्स आप उधर से लिख सकते हैं। लेट मी डिस्कस द क्वेश्चंस विद यू। Do you remember in class 4 you made a solution, salt and sugar? Neetu's father also made this and gave. Neetu's father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? तो बच्चे नीतू के केस में क्या? What problem was she suffering from? She was suffering from loose motions and vomiting. Her body was constantly getting dehydrated. Now this solution of salt and sugar is given to. Now बच्चे हमेशा always remember that ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है बच्चे? ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है? Anything that is sweet will give you energy. Anything that is sweet, because carbohydrates and carbohydrates are energy giving. So whenever you take something sweet, okay, whenever you take something sweet, you will have like the energy level of your body will increase. Now why is, अब आप बोलोगे कि बच्चे कि ठीक है ग्लूकोज तो मीठा होता है तो वो दे दिया, लेकिन बच्चे जब when someone is facing the problem of loose motions, a lot of salt, आपका जो digestive, when you be facing a problem of upset stomach में बच्चे हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जाते ही नहीं है, सॉल्ट लेवल भी कम हो जाता है, शुगर लेवल भी कम हो जाता है, तो इसलिए सॉल्ट और शुगर का, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसलिए सॉल्ट एंड शुगर का सॉल्यूशन दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा होता है, बच्चा या फिर कोई भी फेस कर रहा होता है, तो दैट गेट्स रिजॉल्व। ठीक है बच्चे? Now, have you heard the word glucose or seen it written anywhere? If yes, where? आपने ग्लूकोज वर्ड जो है वो कहाँ पर देखा है बच्चे? Can you tell me? Please use comment section to reply. How? Don't Vedant, don't. हाँ, please write it in the comment. ग्लूकोज वर्ड कहाँ देखा है? अच्छा, मम्मा ग्लूकोन डी लेके आई होगी तो तब आपने देखा है। को देखा है, एड्स में देखा है, घर पर देखा है, शॉप पर देखा है, हॉस्पिटल में भी रखा हुआ देखा है। वेरी गुड बच्चे, थैंक यू फॉर सच अ गुड रिस्पॉन्स। यस, तो बच्चे हम लोगों ने
ग्लूकोज, हमने ग्लूकॉन डी देखा है, ग्लूकोज वर्ड जो हमने एडवर्टीजमेंट्स में भी देखा है, स्कूल्स में भी, पीटी रूम में दे कीप अ पैकेट ऑफ ग्लूकॉन डी कि कभी भी बच्चा जो है डिहाइड्रेट हो जाए या फिर ही जस्ट फेंट और इज अबाउट टू फेंट, इज फीलिंग डिजी, तो तभी उसको ग्लूकॉन डी हम दे सकें। ठीक है बच्चे? Now coming to the next question. Have you ever tasted glucose? How does it taste? Tell your friends. How does the glucose taste, children? Please write in the comment section. Salty and It tastes sweet. Very good. Have you or anyone in your family glucose drip? Everyone silent. बच्चे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट्स में रिप्लाई कीजिए प्लीज, कमेंट्स में रिप्लाई कीजिए, डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। सभी लोग चिल्लाएंगे तो कैसे सुनाई देगा? मैडम तो एक ही है ना। Now have you or anyone in your family been given a glucose drip? When and why? Is there anyone of your family member who was given glucose drip? Have you seen the case? मैम हाँ वेदांत बच्चे, मेरे को आपको लगा था ग्लूकोज ड्रिप? मुझे भी लगा था मैम। आप सबके एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, आपको देख के तो नहीं लगता है। मैम मेरे को नहीं लगा था। मैम मेरे नहीं लगा। मैम 1-2 रात एडमिट भी हुआ। मेरे नहीं लगा। मेरे भाई को लगा था। ओके, तो आप लिख सकते हैं, यू कैन रेफर टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उसमें आपके अगर किसी रिलेटिव को लगा है या आपको खुद को लगा है तो यू कैन राइट ओके आई वाज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, एंड आप अपना केस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ व्हाई इज द ग्लूकोज ड्रिप गिवन चिल्ड्रन? ग्लूकोज ड्रिप इज गिवन टू पेशेंट्स, ग्लूकोज ड्रिप इज गिवन टू द पेशेंट्स who are suffering from either dehydration, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है उनको, लोअर एनर्जी लेवल्स रहते हैं, तब दिया जाता है व्हेन समवन इज अबाउट टू फेंट। हमारी बॉडी जब हम लोग व्हेन वी आर पासिंग वाटरी स्टूल्स चिल्ड्रन, वाटरी स्टूल, हमें लूज मोशन की कंडीशंस हो जाती है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है बच्चे कि वी आर नॉट एबल टू कीप द फूड इनसाइड आवर स्टमक, तो हमारी बॉडी में काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जा ही नहीं रहे, सॉल्ट और शुगर तो जा ही नहीं रहे, तो इसलिए हमारे एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं उसी दिन। और आप ये भी ऑब्जर्व करोगे बच्चे, जैसे आप हमारे बॉडी में जो वाटर है, वाटर का कंटेंट भी कम होता रहेगा, तो क्या होगा, आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे, you will feel a burning sensation, you will feel burning sensation in your eyes. Ma'am, because why is it given, children? Why is that glucose drip given? So that a person who is hospitalized due to sickness can recover faster. What is the main reason? ग्लूकोज ड्रिप नहीं लगाने तो क्या होगा? बच्ची ग्लूकोज ड्रिप नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी में शुगर और सॉल्ट के लेवल और कम होते जाएंगे, ठीक है, आपकी जो बॉडी फंक्शंस हैं वो अच्छी तरह से नहीं होंगे, आपके जो सेल्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंटली डिहाइड्रेट होती रहेगी, और एक बार ऐसा you might face a situation where you are not waking up only, because every activity that your body part does, be it your brain, be it your okay, everything requires energy, और एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? सेल्स में, और सेल्स में प्रोड्यूस होने जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सब एनर्जी इज रिक्वायर्ड। Now, Neetu's teacher used to tell girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? Because क्यों बच्चे, जब हम लोग खेलने के लिए जाते हैं तो हमें ग्लूकोज की क्यों जरूरत होती है? Because हमारी एनर्जी हो जाती है, हम लोगों को एनर्जी और ग्लूकोज और ग्लूकॉन डी की जरूरत पड़ती है। Children, can you please reply? Because, ma'am. Okay, I'm hearing you.
I'm hearing you. I'm there to know what is there in your mind. But please write in the comments. No, I can't hear everyone. You're making noise in the class. मैम क्योंकि वहाँ जाके एनर्जी लेवल लो हो जाता है इसलिए ग्लूकोन डी की जरूरत पड़ती है। Actually, when you are playing a very rigorous game like hockey, what happens? You lose. Do you sweat when you play? Yes, you sweat a lot when you play. Okay, so water comes out of your body in the form of sweat. So at that time you need to drink. आप ना when I used to run a lot, तो तभी मैं क्या करती थी, रनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। रनिंग में आप एक राउंड लगाओगे, फर्स्ट राउंड में क्या होगा, you will feel very thirsty. But अगर आपको दूसरा राउंड लगाना है ना, if you have a lot of water in your stomach, वो water stomach में हिलता रहेगा, you will feel a bit acid while running the second round. तो इसलिए क्या करवाते थे ना, आप थोड़ा पानी पियो, बहुत थोड़ा, इतना पानी पियो कि बस आपका जो गला है ना वो थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए जब भी कभी आप खेलने के लिए जाते हो ना बच्चे, टेक ब्रेक्स एंड देन प्ले। थोड़ा पानी पी लो, नॉट कम्प्लीटली डिहाइड्रेट योरसेल्फ व्हाइल यू आर प्लेइंग। ठीक है बच्चे, और जब आप अगर कोई ऐसा रिगरस गेम खेलने जाते हो, टाइमिंग के साथ में खेलते हो ना बच्चे, तो कीप अ स्मॉल बॉटल ऑफ ग्लूकोज विद यू। Look at Neetu's picture and describe what is happening. How is glucose drip being given? तो बच्चे यहाँ पे इस पिक्चर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें बच्चे। इसमें ग्लूकोज ड्रिप कैसे दी जा रही है? नर्स नीतू को ग्लूकोज ड्रिप कैसे दे रही है? Here in this picture we can see that there is a bottle जिसमें ग्लूकोज रखा, there is a bottle which contains glucose, and that bottle is attached to the nerve. It is attached to the nerve of Neetu, and you know the bottle and the Neetu's vein is being connected with a pipe. And how is that pipe joined to the nerve? बच्चे उसमें एक syringe होती है, छोटी सी syringe होती है, which is put in your vein, है ना? It is put inside your vein. थोड़ा दर्द होता है, पर once you get the glucose, और जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको ग्लूकोज दिया जाए, ठीक है, उसके साथ में अगर कोई और मेडिसिन भी मिक्स करनी है तो वो भी मिक्स करके दे रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे लगा था। ठीक है, हाँ। तो नाउ चिल्ड्रन एक बार आप ना क्या करो बच्चे, नाउ चिल्ड्रन who have registered for the science exhibition, please let me know your names. Please let me know your names. हम इन सब में से एक ले सकते हैं, टॉपिक में से एक टॉपिक। प्लीज कमेंट सेक्शन में वो लोग अपना नाम दें और टॉपिक दें जिन्होंने साइंस एग्जीबिशन के लिए रजिस्टर किया है। मम्मी एक मिनट बच्चे ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, ये आप साइंस एग्जीबिशन के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लिसन, अभी डू नॉट गिव योर नेम्स चिल्ड्रन। जो हमने क्वेश्चंस अभी डिस्कस करे हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट होने चाहिए। फॉर रेफरेंस यू कैन गो टू द गूगल क्लासरूम, वहां पे नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वहां पे नोट्स अवेलेबल हैं और प्लीज गो थ्रू देम एंड देन कंप्लीट इट इन योर क्लास बुक, इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, you were really nice in this session. You gave me a very positive response. You gave me answers on time. Thank you children. Have a good day ahead and bye bye ma'am। एक मिनट बच्चे